का मीटिंग है. So we are going to look at the life of Solomon, सुलेमान के बारे में. So शायद आप लोग भी सब कुछ मनन किया होगा, तो यही हमारा एक मौका है. There's an opportunity for all of us to share something of the life of Solomon through the Word of God, which God has taught us. Some lesson. Through different people, we learn different lessons, and we can think about that in our own life in the future. हम इसके ऊपर हम विचार भी कर सकते हैं. तो मैं तो पहले थोड़ा शेयरिंग करेंगे, तो उसके बाद भाई लोग भी सब एक एक करके शेयरिंग करते, सबका मौका है. तो ब्रीफली यू कैन शेयर आप क्या सीखा है सुलेमान का जीवन से. तो ब्रदर, दिस वन इज ऑन द लाइन. Raju? Yes, brother. Yes, brother. You'll be able to translate, no? Okay. Yes. So, when I think about the life of Solomon, Solomon, 1 Kings chapter 2. जब मैं सुलेमान के जीवन के बारे में देख रहा था, पहला राजा अध्याय 2 verse 1. वचन 1. As the time of King David's death approached, he gave the charge to his son Solomon. जब दाऊद के मरने का समय समीप आया, तो उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा. We know David was a man after God's own heart. और हम जानते हैं कि डेविड जो है, दाऊद जो है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला है. And his son really respected his father, and he also David was also became an example to his son. और सुलेमान जो था अपने पिता का आदर करता था, और दाऊद भी जो था वो अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा उदाहरण था. And he said David was getting old. Now he said, I'm going to get old and I'm going to die very soon, as everybody in this world has to die. और फिर दाऊद ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं मरने पर हूँ. And verse 2 it says, take courage and be a man. और वचन 2 कहता है, मैं संसार की रीति के अनुसार, वचन फर्स्ट किंग, chapter 2 verse 2. हाँ, मैं संसार की रीति के अनुसार विदा होने पर हूँ, इसलिए तू सामर्थी होकर पुरुषार्थ दिखा. Yes, so we have to learn that we have to be like a man. और हमें भी एक सामर्थी रहना है और एक आदमी के जैसा रहना है. Be a man means take a firm decision and stand by it. और भी उसका मतलब यह है कि हमें हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहना है. And he also told in verse 3, observe the requirements of the Lord your God and follow all his ways. Keep the decrees, commands, and regulations and laws written in the law of Moses, and you will be successful in all that you do and wherever you go. And verse 4 also, and if you do this, then the Lord will keep the promise he made to me. He told, if your descendants live as they should follow me faithfully with all their heart and soul, one of them will always sit on the throne of Israel. और वचन 3, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी देखभाल करना, उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे कि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, जिससे यहोवा अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करे जो उसने मेरे विषय में इस प्रकार कही कि यदि तेरे पुत्र अपने चाल चलन में सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और अपने संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ चले, तो तुझे इजराइल की राजगद्दी पर बैठने के लिए किसी व्यक्ति की घटी न होगी. See, David was a man after God's own heart, and he obeyed the Lord as much as to the best of his ability. और दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला था, और उसने अपने जीवन में अपना पूरा अच्छा दिया आज्ञा पालन में. So we hear that David also telling his son Solomon that you also should observe all that the Lord God has taught us through the law of Moses, and do his commandments and everything that God has commanded in the word. और दाऊद भी अपने पुत्र को कह रहा था कि तुम भी परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की दिए गए व्यवस्था और उस वचनों को पालन करना. And then we should also follow the Lord with all of our heart.
और परमेश्वर का पीछा पूरे हृदय से करना and with all our soul, और पूरी आत्मा से, then the Lord will give us success, and every one of your descendants will sit on the throne of David. और तब परमेश्वर हमें सफलता देंगे और हम सिंहासन पे बैठेंगे। So this is the promise that if we follow the Lord will always be with us, and we will sit on the throne, means we'll have victory over every sin and power of evil over our lives. और जब हम प्रभु का पीछा करेंगे तो हम सारे पापों पे जयवंत होकर हम पूरी तरह विजयी होंगे। So God requires the devotion of all our heart. परमेश्वर जो है हमारे हृदय से वो आराधना चाहता है। So this is, he had a very good example in his father. और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है अपने पिता के लिए। Then it says in chapter 3 verse 3, और फिर अध्याय 3 में 3 वचन कहता है, Solomon loved the Lord and followed all the decrees of his father, except that Solomon too offered sacrifices and burnt incense at the local places of worship. सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। इसके अतिरिक्त वह ऊंचे स्थान पर बलि भी चढ़ाया करता था और धूप जलाया करता था। So we don't know, Solomon loved the Lord and obeyed him, but he also did sacrifices to, we don't know, other gods, but the other places where God did not command. और सुलेमान जो है ये परमेश्वर से प्रेम रखता था, लेकिन वो बहुत बलिदान भी करता था और उसके बारे में पता नहीं, वो धूप भी जलाता था। So right from the beginning of our lives, there is something in our flesh that doesn't want to do God's will, but wants to do our own will. और शुरुआत से ही हमारे शरीर में एक ऐसी अभिलाषा है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं करना चाहता है, बल्कि अपनी इच्छा करना चाहता है। And this, I think, is because in verse 1 that Solomon went and married Pharaoh's daughter from Egypt. और वचन 1 में बताता है कि सुलेमान जो है फिरौन की बेटी से विवाह करने चला गया। And many times the people who are close to us will influence us to do the wrong thing. और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे नजदीक है वो हमें प्रभावित करते हैं, हमें दूर करते हैं। That is why in the time of marriage we must always be very careful that we always marry people who are committed to the Lord and true disciples of Jesus Christ. इसलिए हमें शादी के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे शादी कर रहे हैं वो प्रभु के सही दासी होना चाहिए, प्रभु से पूरी तरह प्रेम करने वाला होनी चाहिए। But God asked him one day in a dream, "What do you want from me?" एक दिन सपनों में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? And in the dream, Solomon replied in verse 9, "Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong, for who by himself is able to govern this great people of yours?" और वचन 9, इसलिए अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन प्रदान कर कि मैं भले और बुरे का भेद कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। So Solomon asked the wisdom. We said the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और सुलेमान जो था परमेश्वर से बुद्धि मांगता था, जिससे परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। If the Lord asks us, "What do you want?" और परमेश्वर पूछेंगे आपको क्या चाहिए? Solomon could have asked, "I want a big house, I want so much of wealth and all that." But he first asked God, "I want wisdom." और सुलेमान जो था वो घर चाहिए, बंगला चाहिए या संपत्ति चाहिए, वो ना मांगकर पहले उसने बुद्धि मांगा। And because he asked for wisdom, God told him in verse 12, "I will give you what you asked for. I will give you a wise and an understanding heart, such as no one else has ever had or will have." And verse 13, "I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in this world will be compared to you for the rest of your life." और इसलिए कि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगा तो परमेश्वर ने उसे बताया, वचन 12 और 13, इसलिए देख मैंने तेरे वचन के अनुसार किया है, मैंने तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन दिया है, जिससे कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ
और ना तेरे बाद कभी कोई होगा, और मैंने तुझे वह भी दिया है जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, और जिससे कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। So in our deepest dream, if God asks us, God stands before us, our first reply should be, Lord, I want to be close to you. I want your wisdom, your character. और जब परमेश्वर हमारे बहुत करीब होते हैं और परमेश्वर पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु आप हमारे बहुत करीब आइए, आपका बुद्धि हमें दीजिए, आपका डर दीजिए। Not all the solution to all my problems and my difficulties. और ना कि ये सब जो भी जीवन में हर दिन जो समस्या आते हैं, When we ask God for the right thing, then all God will take care of the remaining things. अगर हम परमेश्वर से सही चीज मांगेंगे, परमेश्वर बाकी जो बचा हुआ है उस पे हमें सफलता देंगे। So we see that many believers ask God for all earthly things, and that's why God does not give it to them. और हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी जो है पूरी पृथ्वी और संसारिक चीज के ही मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें ये सब देता नहीं। They want to live a happy life in this world. They don't want to please God. और वो इस दुनिया में तो आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को खुश करना नहीं चाहते। But Jesus said, if you seek the kingdom of God first and his righteousness, all these things will be added to you. और परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। So that is why we must, when God asks us something in our own life, we must always give our best for the Lord and ask for his nature and his character. Then God will add everything else to us. और इसलिए जब भी परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए तो हमें प्रभु से यही कहना चाहिए, प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए, आपकी महिमा के लिए हमें जीना है। So we see immediately after that God gave him wisdom and he could distinguish between the right and the wrong. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बुद्धि दिया और फिर उसके बाद सही और गलत में बताया गया है। So there were two ladies who were pretending that which was the real child of theirs. So God gave Solomon the wisdom and the right question to ask. और हम देखते हैं कि दो महिलाएं वहां पे आई थी और उस मामले को सुलझाने के लिए सुलेमान के पास आया था, तो सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया था उसको उस पे सफलता के लिए। So in our lives also God will give us the wisdom to reply the right words and to see through different people and to see which one is doing the wrong thing, which is doing the right thing. वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर सही समय पे सही शब्द देंगे कि हमें क्या बोलना है और हर एक परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है। So, and because of that, because he feared God, God made prospered Solomon very much. और क्योंकि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने इस तरह सुलेमान ने इस तरह से व्यवहार किया, परमेश्वर ने उसे बहुत सारे आशीष दिया। And chapter 4, 1 Kings chapter 4 verse 20. और पहला राजा अध्याय 4 वचन 12। It says the people of beast 20. It says the people of Judah were as numerous as the sand of the seashore, and they were very contented and plenty to eat and drink. यहूदा और इजराइल के लोग समुद्र के किनारे की बालू की भांति अत्यधिक थे, वे खाते पीते और आनंद मनाते थे। And there was a lot of peace in that land. और बहुत ही आनंद और शांति था उस भूमि पर। So when we follow the Lord, there will be peace in our lives and peace in our families. और जब हम प्रभु का पीछा करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति रहेगी और हमारे परिवार में भी शांति रहेगी। And the apostle, he said, and God gave so much of knowledge to Solomon. और कहता है कि परमेश्वर ने बहुत सारा बुद्धि सुलेमान को दिया। He got knowledge about animals, birds, trees, sky, stars, everything. और उसे नॉलेज ज्ञान दिया गया आकाश के बारे में, पक्षी के बारे में, जानवर के बारे में, सब कुछ के बारे में। It was the gift of God. और ये परमेश्वर का वरदान था। So when we follow the Lord will give us intelligence also to do the right thing in our workplace and everywhere else. यदि हम प्रभु का पीछा करें तो प्रभु हमें सही रीति से हमें अगुवाई करेगा और हमें सही दिशा में ले जाएगा। According to the need of the moment, the Lord will supply all our needs. और हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमारे सब जरूरतों को पूरा करेंगे। The first thing we have to do is always keep God first in our lives. और पहली बात यह है कि हमेशा परमेश्वर का पहला स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। And God used Solomon to build the temple of God.
और परमेश्वर ने सुलेमान को इस्तेमाल किया भवन बनाने के लिए। And he had the privilege of building the temple, and with all the costly stones and all the good things which David had gathered. और महंगे महंगे ईंट और महंगे महंगे सब चीजें जो भवन बनाने में लगते हैं, उसको उसने बनाया, और परमेश्वर ने ये सब उसे बुद्धि दिया। So we must see that in our lives also we must be used by God to do the work of God, to spread the gospel and to encourage one another and bring other people to Christ. तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर के द्वारा हमारा इस्तेमाल होना चाहिए कि लोगों को, अपने लोगों को और विश्वासी भाइयों को, सबको आशीष का कारण बने। There is a song which Brother Zach wrote. It says that if all my life revolves around me and thoughts of my own family, Lord, give me light that I may see. और जैसे कि भाई जैक ने भी गाना लिखा था, प्रभु हमें वो प्रकाश दे कि मैं इसको देख सकूं। That I am only living so selfishly for myself and my family. क्योंकि मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ और अपने परिवार और खुद के लिए ही जी रहा हूँ। So we must live for the family of God. और हमें परमेश्वर के विश्वासी परिवार के साथ जीना चाहिए। That is the first preference we must give for the family of God, then to our own family, then to all other relatives and friends. हमें परमेश्वर के परिवार और उनके प्रति हमें विचार, उनके प्रोत्साहन देना चाहिए, बाकी सब रिलेटिव परिवार और सब आते हैं। We must always see that we must be interested in our life to spread the good news of Jesus to others. और हमें एक ऐसा इच्छा होना चाहिए कि हमेशा हम प्रभु के सुसमाचार को जगत में फैलाएं। And sacrifice our life and time and money for the service of God. और जो भी हम अपना समय, पैसा और जो भी हम समय बिताते हैं, उस सब में परमेश्वर की महिमा को देना चाहिए। So when Solomon built the temple, the glory of God came into the temple. और जब सुलेमान ने उस भवन को, मंदिर को बनाया, तो परमेश्वर का तेज उसमें आ गया। And the smoke covered the temple and the glory of the Lord came over the place. और जो वो धुआं था जो उस भवन में आ गया और सबको घेर लिया। So that is important in our life. When we work unselfishly for the Lord, the glory of God will come upon our life. God will bless us. और जब हम बिना स्वार्थ के परमेश्वर के पास आते हैं, और तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। It says in 1 Kings chapter 8 verse 10. पहला राजा अध्याय 8 वचन 10। It says, when the priests came out of the holy place, a thick cloud filled the temple of the Lord. The priests could not serve their service because the cloud and the glorious presence of the Lord filled the temple of the Lord. और ऐसा हुआ कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा का भवन बादल से भर गया। अतः बादल के कारण याजक सेवा करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। So all of us should have the anointing of the Holy Spirit in our lives. When we serve the Lord will give us the anointing and His presence will be with us when we serve Him with all of our hearts in our personal lives and also for the work of the Lord. और हम सभी को परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक होना चाहिए और पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए, जिससे कि हम सबकी सेवा कर सकें। So it is very important in our lives that we are filled with the Holy Spirit. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें हर समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। And then God will bring people from far away to hear the word of God and to be encouraged and to be blessed. और परमेश्वर फिर जो दूर है उससे परमेश्वर के पास लाएंगे और प्रभु के वचन से उन्हें प्रोत्साहन देंगे। God told Abraham that you will be a blessing to all the families of this earth. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम आशीष सारे तेरे वंशज के आशीष का कारण होगे। So you and I also are called to be a blessing, not only to all the people whom we meet, all the families whom we meet. और प्रभु ने हमें और आपको बुलाया है कि हम आशीष का कारण बने। And also to people far away, like Queen of Sheba came and she was so impressed with the wisdom that God had given to Solomon. और दूर जो हमारे दूर रहते उनके लिए भी, जैसे शिवा और आई थी और सुलेमान के बुद्धि को सुनने के लिए। And God, dear brothers, has given each of us a responsibility to serve Him and love Him in whatever area God has given us. और परमेश्वर ने हर एक को ये जिम्मेदारी दिया है कि हम उस जो जिम्मेदारी योग्यता के अनुसार परमेश्वर की सेवा करें। So you and I should fulfill God's plan and seek after God's plan for our lives. आपको और हमें परमेश्वर की इच्छा को और पूरा करना है।
It may be a small thing that we do, but God will bless it tremendously. हो सकता है हम बहुत छोटा सा काम करें, लेकिन परमेश्वर उस पे बहुत आशीष बनाए रखता है। So in the middle of all this, as God, but because Solomon did some 2-3 very foolish things. और सुलेमान ने जो था बहुत सारा मूर्खता भी जीवन में किया। It says in 1 Kings chapter 11, और पहला राजा अध्याय 11, verse 1, it says, Now Solomon loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. वचन 1, राजा सुलेमान फिरौन की पुत्री और अन्य बहुत सी विदेशी स्त्रियों अर्थात मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों से प्रेम करने लगा। The Lord, verse 2, had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. Yet Solomon insisted on loving them anyway. वचन 2, ये उन जातियों की स्त्रियां थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके साथ संबंध न रखना और ना ही वे तुम्हारे साथ संबंध रखे, क्योंकि वे निस्संदेह तुम्हारे मन को अपने देवता की ओर फेर लेंगी। सुलेमान अग्नि के साथ प्रेम में लिपट रहा। So he had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and in fact they did turn his heart away from the Lord. और उसने 700 राजकुमारियां को और अपनी पत्नियां बना लिया और उसकी 300 रखेलियां थी और उसकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। So even though God told him that these things are wrong, he insisted on doing these things because he got a lot of benefit, got a lot of beautiful wives, and he got lots of money because he married them. और बहुत सारी सुंदर स्त्रियों और ये सब चीजों में वो प्रेम करने लगा और उसमें वो भटक गया। And in verse 6 it says, in this way Solomon did what was evil in the sight of the Lord's sight, and he refused to follow the Lord completely as his father David had done. और वचन 6, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जैसे उसका पिता दाऊद पूरी रीति से यहोवा के पीछे चलता था वैसे वह न चला। See, a person who is so wise God gave him so much wisdom, he did lot of foolish things by his disobedience and his stubbornness. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था, लेकिन वो अपने इच्छा के कारण और पाप में चला गया। He married unbelievers. Because of that, God was very angry with them. और उसने जो परमेश्वर से बाहर अन्य जातियों से स्त्रियों से शादी कर लिया, जो परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित हुए। Because then he also started worshipping all the wrong things that they were worshipping. और वो भी आराधना करने लगे जो लोग गलत मूर्तियों की आराधना करते, उसमें भी ये फंस गए। Verse 9 says, the Lord was very angry with Solomon, for his heart turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. वचन 9, तब यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसे दर्शन दिया था। So God gets very angry. Instead of being happy with us, he gets very angry with us when we disobey him and do the things that are against his will. और परमेश्वर उस पे सुलेमान पे क्रोधित हुए। परमेश्वर को आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए था, उसके पहले बुद्धि दिए थे, लेकिन अभी वो क्रोध हो रहे क्योंकि वो गलत किया। So many times God is angry with so many believers because they just live their own selfish lives. और परमेश्वर ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं बहुत सारे विश्वासियों के ऊपर, क्योंकि वो अपने स्वार्थी जीवन ही जीना चाहते हैं। They don't want to listen to the word of God. They want to listen to their friends and to their relatives. और वो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, बल्कि अपने दोस्त और रिश्तेदार और संगति में बिताते हैं। And verse 10 says in chapter 2 verse 11, chapter 1 Kings 11 verse 10, God had warned Solomon specifically about worshipping other gods, but Solomon did not listen to the Lord's command. पहला राजा अध्याय 11 वचन 10, और इसी बात के विषय में उसे आज्ञा दी थी कि वह पराये देवता के पीछे न चले, परंतु उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी थी। So as believers also, we can initially follow the Lord well, but afterwards when we want to do our own will, the Lord gets very angry with us because of our stubbornness. और विश्वासी भी हो सकता है शुरुआत उनका अच्छा हो, अच्छे से चल रहे प्रभु के साथ, लेकिन बाद में अपने स्वार्थी अभिलाषा में फंसकर और परमेश्वर उस पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। And because of that, God allowed so many enemies to come against him. और इसका कारण क्या होता है, परमेश्वर बहुत सारे शत्रुओं को हमारे जीवन में फिर भेजते हैं। And all the peace that was there in the kingdom also went away.
और जो भी हमारे पास शांति रहता है वो भी चला जाता है। So we see in Solomon's life, the beginning was good, but the end was very bad. और हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि शुरुआत तो सुलेमान का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एंड बहुत ही बेकार और खराब था। He was so full of wisdom and love of God, and he had so much of blessing over his life, but all these things went because he didn't put God first. He had so many idols. उसके पास बहुत बुद्धि था, बहुत सारा बुद्धि था, और बहुत सारे वो उसके परमेश्वर से प्रेम करता था, बहुत सारा आशीष भी था, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गया अपने। And what are these idols for you and me? और ये मूर्तियां क्या है आपके लिए, मेरे लिए? The greatest idol is money. और सबसे बड़ा मूर्ति तो पैसा ही है। And then lot of honor. We run after honor. और जो आदर पाने का जो अभिलाषा होता है। So many believers backslide. They come even to good churches like CFC and they backslide. और बहुत सारे विश्वासी इतने अच्छे कलीसिया में भी आते हैं और पीछे हट जाते हैं। And God sends his prophets to warn them every now and then, but they don't listen. और परमेश्वर जो है ऐसी सिचुएशन में भविष्यवक्ताओं और विश्वासियों के द्वारा बात करते हैं और भेजते हैं। And because of that, the peace and joy and love goes away from their heart. और इसका कारण क्या होता है? शांति और आनंद जो है उनके जीवन से चला जाता है। They want more and more worldly things in their life. और वो ज्यादा से ज्यादा सांसारिक चीजों को ही जीना चाहते हैं। Because of that, the love for God becomes less and less in their life. और इसका क्या परिणाम क्या होता है? परमेश्वर का जो प्रेम है ठंडा ठंडा होता जाता है। And that is the sad thing that happened to Solomon, that he became an idolater towards the end of his life. और ये बहुत ही दुख की बात है कि सुलेमान मूर्ति पूजा और मूर्ति आराधना में चला गया। He was still the king of Israel, but he became an idolater. और वो राजा था, लेकिन वो मूर्ति पूजा में चला गया। And all the evil spirits began to trouble him. और पूरे दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। We did not read whether the Solomon repented from his idolatry. और हम ये मालूम नहीं पड़ता है कि उसने मन फिराया कि नहीं फिराया। So you and I, when God speaks to us about something that is precious for us in these worldly things, let us repent from it and turn to God. और आपको और हमें परमेश्वर हमें बोलते हैं तो हमें उस सिचुएशन में जल्द से मन फिरा लेना चाहिए। Let us keep God first, and even if we are poor in this world, let us have the presence of God with us rather than the things of this world. हो सकता है हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कम है, लेकिन परमेश्वर का भय हमारे साथ है तो हमारे पास सब कुछ है। So praise the Lord, brothers. Everybody can share one by one from their heart what God has spoken to us through the life of Solomon. Many things we learn from for our own personal life. बहुत ही स्तुति हो। आप भी भाइयों शेयर कर सकते हैं जो भी प्रभु ने आपके जीवन में बात किया है। So I'm sure everybody has got something to share. So please start quickly and open your mouths and share. मुझे आशा है सबको परमेश्वर ने जरूर कुछ सिखाया। आप शेयर कर सकते हैं। Anybody can start. कोई भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी अपना दिल में जो कुछ भी कहना है, एक या दो पॉइंट भी कह सकते हैं। ओके, जैसे मुझे बात करनी थी कि हालांकि मैं अपने गांव गया था कुछ काम के सिलसिले में, और वो थोड़ा सा अच्छा जगह था जो हमारे रिलेटिव सब थे, और हम लोग काफी कुछ अच्छा खाना खा रहे थे, कुछ साधारण खाना से थोड़ा अच्छा। लेकिन मेरे को याद आ रहा था, ब्रदर जॉर्ज हमेशा कहते थे कि जब बिलीवर्स वेकेशन में जाते हैं, अपने अनकन्वर्टेड रिलेटिव से मिलते हैं, तब उनको वो बैकस्लाइड हो जाते यूजुअली। तो मेरे को ये बात हमेशा मन में रही जब रिसेंटली तब। तो मैं क्या करता था, मैं प्रभु से बहुत अनुग्रह पूछता था। सुबह से जैसे मैं उठता था वैसे मैं प्रेयर और बाइबल स्टडी करता था, और ये जो मेरा डेली डिवोशन टाइम रहता था प्रभु के साथ, इसकी वजह से प्रभु के अनुग्रह से मेरे ख्याल से मैं उतना बैकस्लाइड नहीं हुआ प्रभु के अनुग्रह से। और भले मैं अच्छा खाना खाया, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, लेकिन प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ था।
और मैंने मेरे जो अंकल के लिए मैंने प्रेयर भी किया, उनके हीलिंग के लिए। पता नहीं भी हील हुए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने उनके लिए प्रेयर किया। तो इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि ना जो एल्डर्स बोलते हैं वो एक वार्निंग रहता है, एक प्रोफेसी नहीं होता, वो एक वार्निंग रहता है। अगर हम वो वार्निंग को सुनते हैं और उसको ओबे करते हैं तो हमें बहुत प्रतिफल मिलता है उसका। आमीन। आमीन। हॅलो, प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हॅलो, प्रेज लॉर्ड. प्रभूला सत्य असो. आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो, कारण शालोमन राजा हा ख्रिस्ताचं प्रतीक होता, परंतु त्यानं प्रभूची परमेश्वराची आज्ञा मानली नाही. आज प्रभू आम्हाला काय सांगत आहे, प्रभू आमच्याकडून काय मागत आहे. प्रभू आम्हाला ज्या गोष्टी देतो त्या मागण्यापेक्षा अधिक देतो, परंतु प्रभूला आम्ही काय दिलं पाहिजे. प्रभूला आम्हाला देण्याकरता खऱ्या अंतःकरणाने आम्ही प्रभूचा शोध घेतला पाहिजे. प्रभू फक्त आम्हाला अंतःकरण मागत आहे. आपल्या अंतःकरणाचा प्रत्येक एक एक भाग, एक एक कप्पा प्रभू मागत आहे. आपण काय म्हणणार, नाही प्रभू माझ्या ह्या कप्प्यामध्ये हे विशेष कप्पा आहे, हा विशेष तुला मी देणार आहे. हा तू इथंच आपल्या इथं बेडरूम मध्ये राहा आणि जा, असं आपण म्हणू शकत नाही. तर प्रभूला काय पाहिजे, संपूर्ण पूर्ण हृदयाने, पूर्ण शक्तीने, पूर्ण शांतीने, पूर्ण शक्तीने आम्ही प्रभूला ते प्रेम दिलं पाहिजे. कारण मी शालोमन गीतरत्न पुस्तक वाचत असताना गीतरत्न पुस्तकामध्ये गीतरत्न याचा पहिला अध्याय 2 वचनापासून ते 4 वचनापर्यंत सांगितलंय की तो माझ्या मुखाचे चुंबनाने माझे चुंबन घेऊ, कारण तुझी प्रीती द्राक्षरसापून उत्तम आहे. तुझ्या तेलांना उत्तम सुवास आहे. तुझे नाव ओतलेल्या तेलासारखे आहे. यामुळे कुमारी तुझ्यावर प्रीती करतात. मला आकर्षून घे, आम्ही तुझ्या मागे धावू. राजाने आपल्या अंतपुरात मला आणले आहे. आम्ही तुझ्या ठाई उल्हास व हर्ष, द्राक्षरसापेक्षा अधिक आम्ही तुझ्यावर प्रीतीचे वर्णन करू. सरळपणाने त्याने तुझ्यावर प्रीती केली आहे. आज आम्हाला प्रभूच्या जवळ येत असताना आम्ही प्रभूजवळ एकच मागितलं पाहिजे. शलोमोनानं मागितलं काय, प्रजेकरता चालू न करता मला ज्ञान बुद्धी दे. प्रभूने त्याला ज्ञान बुद्धी दिली. प्रभूने त्याला ज्ञान बुद्धी विवेक दिला. आज आम्ही प्रभूला मागत असताना प्रभूला काय, प्रभूने आम्हाला सरळ अंतःकरण प्रभूला आम्ही मागितलं पाहिजे. प्रभू मला सरळ अंतःकरण दे. आज मी एका बंधू बरोबर कोणा बोलत असताना आम्ही जर आड पडद्यातून आम्ही जर मनामध्ये काय ठेवून बोलणं, तर ही प्रभूला ठाऊक आहे. कारण आम्हाला प्रभू जवळ जात असताना आम्हाला सरळ मन पाहिजे, त्याची प्रीती पाहिजे, त्याच्या चिमणानं आम्हाला आकर्षून घेतलं पाहिजे आणि आमच्या अंतःकरणाचा सर्व कप्पा प्रभूला दिला पाहिजे. प्रभू असे आम्ही प्रीती केली पाहिजे, सर्व काय प्रभूला दिलं पाहिजे. म्हणून शलोमोन राजाला देत असताना प्रभूने काय त्यानं मागितलं, ज्ञान बुद्धी सगळी दिली. शलोमोनाने न्याय केला, त्या 2 स्त्रियांच्या मुलाबद्दल न्याय केला. एक स्त्री जन्मल, तिच्या मुलाला घेऊन त्या बाळाला घेऊन झोपली असती, दुसरी त्या बाजूला झोपली असती आणि एकीच्या आपल्या मुलाला ते पाजत असता तो मूल मेलं. पण हा न्याय राजाकडे गेला असताना शलोमोन अगदी कसा न्याय केला. खरोखर हे बघ वाचण्यासाठी आहे. खरोखर हा न्याय देव प्रभूचा न्याय आहे. पक्षपात त्यामध्ये केला नाही. त्याने सांगितलं की जी खरोखर आई अंतःकरणापासून कळवळा येते, आज आम्हाला अंतःकरणापासून कळव येत असताना तिचं मुलं आहे तिला द्या, असा प्रभूनं त्याला न्याय केला. परंतु शमीर कुठे चुकला, देवाला जे काय द्यायला पाहिजे होतं ते त्याला दिलं नाही आणि तो आज्ञापासून भटकून गेला. आज आपण सुद्धा एवढे वर्ष प्रभूमध्ये असताना आम्ही सुद्धा प्रभूपासून भटकून जाऊ शकतो. म्हणून प्रभूला जे पाहिजे तेच आम्ही प्रभूसाठी खुल्लं करून द्यायला पाहिजे. प्रभू मला सरळ अंतःकरण दे आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुला पाहायचं, तुझ्यावर प्रीती करायची, या प्रीतीने मला भर. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमीन. आमीन. मैं भी
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी जब वचन पढ़ रहा था तो बहुत सारा प्रभु ने मुझे भी सीखने को मिला। जैसे कि मैं देखता हूँ कि सुलेमान का जो जीवन है उसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दिया था, और परमेश्वर ने उसने जो मांगा था बुद्धि से, परमेश्वर उसे प्रशंसा भी कर रहे थे कि तुमने ना तो सोना चांदी मांगा, ना संसार की चीजें, लेकिन तुमने बुद्धि मांगा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें वो सब चीजें भी दूंगा। तो सच में उस समय उसका हृदय बहुत प्रभु के लिए नम्र था, और लेकिन बाद में देखते हैं शुरुआत बहुत अच्छा था। तो उससे मुझे सीखने मिलता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ चलने पे जब नम्रता से हमारा शुरुआत होता है, उसको अंत तक बनाए रखना चाहिए, और कभी भी अपने मन का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो बाद में सुलेमान जो है भटक गया था। इसमें भी एक वचन पढ़ूंगा, नेहमाया में, नेहमाया चैप्टर 13, नेहमाया चैप्टर 13 में 26-27। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इन्हीं बातों के पाप में नहीं फंसा था? तो भी अनेक जातियों में उनके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। उसका परमेश्वर उससे प्रेम करता था, और परमेश्वर ने उसे समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया था। परंतु अन्य जातियों स्त्रियों ने उसे पाप में पाप कराया। तब क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति स्त्रियां विवाह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? तो वहाँ पे बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला कि मुझे अभी बहुत जीवन में अलर्ट रहना चाहिए अन्य जातियों की स्त्रियों से जो प्रभु में नहीं है, और तो वो हमें फंसा सकते हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। कभी भी विवाह बाहर परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं करना चाहिए। तो बाद में सुलेमान उसी लालच में, और उसका जो अंदरूनी जीवन भी था वो बहुत ही अभिलाषा में और बहुत सारे लालसा और आनंद और सुख में जीता था। लेकिन जब वो आए एंड में, उसने एक वचन भी कहा था सपोपदेशक में 12 में 13-14 कि अंत की बात यही है, परमेश्वर का भय मान और बुराई से अलग रहे, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का न्याय करने को आने वाला है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, सब गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो इससे मालूम पड़ता है मुझे भी कि संसार में कोई भी आनंद नहीं है, चाहे हम बड़ा घर बना ले या अच्छे गार्डन बना ले, अच्छे खूबसूरत चीजों को इस संसार की देखे। सुलेमान ने सारे आनंद लिया, लेकिन फिर भी एंड में उसका एंड डिस्करेज हो गया। उसने बोला ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब व्यर्थ बोलने लगा। तब जाके मुझे प्रभु के से मालूम पड़ा कि प्रभु के ऊपर आशा रख के और प्रभु के भय में मुझे चलना है, और बाहर से और संसारिक चीजें हमारे इस पवित्र मंदिर में नहीं आने देना है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। Sure, others also share. स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देते, आज के दिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। जैसा सुलेमान का वचन को हमने सुना, इस समय सुलेमान का लाइफ के बारे में प्रभु ने उसे बहुत आशीष किया था। परमेश्वर ने से कल वो बुद्धि मांगा था, पर परमेश्वर ने बहुत कुछ उसको दिया था उसके लाइफ में। तो सुलेमान चल रहा था प्रभु के साथ, जैसे जैसा उसका नाम बढ़ रहा था, जैसे सब और धनी होते गया और पैसे, और उसका नाम बहुत फेमस होते गया, शायद उसके कारण वो भटक गया लगता है परमेश्वर के राज में और परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए। तो मैं ये सीखता कि मतलब परमेश्वर सब कुछ दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, पर हम उन सारी चीजों को पकड़ के नहीं रहने चाहिए जो प्रभु ने हमें दिया। एक्चुअली हमें पकड़ना है तो हमेशा परमेश्वर का हाथ को पकड़ना चाहिए। जिस तरह सुलेमान को हम देखते कि वो बहुत शायद अय्यशी लाइफ जी रहा था, भूल गया परमेश्वर के बातों को पालन करना, उसके आज्ञा को पालन करना। तो मेन, हम हमेशा परमेश्वर के हाथ पकड़ के रहेंगे तो प्रभु हमको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है ना मैं तुमको छोड़ूंगा ना तुमको त्यागूंगा। तो इस तरह मतलब लाइफ में अगर आईएससी लाइफ हमारा रहेगा तो हम प्रभु को हमेशा भूल जाएंगे। अगर हमारा लाइफ में प्रॉब्लम और समय से, इसके लिए परमेश्वर हमें समस्या के अंदर से ले जाता है, क्योंकि पता है अगर हमको ऐसे ही प्रभु छोड़ देगा तो हम भटक जाते हैं और हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देंगे। इसलिए जैसा मैं मेरे लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैं अभी जिस तरह लॉकडाउन से पिछले 2 साल से चल रहा है, तो
मतलब ऐसे बहुत सारा समस्या आना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसकी तरह मैं हमेशा प्रभु को बहुत दिल से पुकारता हूँ, दिल से उससे प्रार्थना करता हूँ। तो अगर मेरे पास सब कुछ रहता था, जैसा सुलेमान के पास, परमेश्वर को उपस्थित में रहता रहता, कुछ सुनता रहे, कुछ करता नहीं, हमको आंसर बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। परमेश्वर से भी परमेश्वर का हमेशा आनंद काल में, तो जिसमें था कि बहुत सारा प्रॉब्लम आने से मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा हूँ। मतलब हमेशा मैं प्रभु के पास चाहता हूँ कि मुझे मदद चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे आपकी दया की नीड है। तो परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति से ले जा रहा है कि मैं उससे दूर जाऊँ पर उसके साथ रहूँ। जिस तरह सुलेमान ने प्रभु को अगुवाई किया, सुलेमान अपनी आमीन। लाइन थोड़ा कट गया, और कोई भी शेयर कर सकता है? महेश्वरन इज देयर, वीर, कोई भी? Sir, Yeah. You can share something from Solomon. yes, sir. I will share, sir. Yeah. So, Few minutes. okay, sir. Sure. So, if we consider the life of the Solomon, first thing is that which Jesus told to seek the kingdom of God first, and other things will be added to you. So similar thing was, and Solomon was an example that he seeked the wisdom of God to judge the Israel people. So that's how we should be to seek the kingdom of God, so that the earthly things will be taken care. And Amen. the second thing is before Solomon was a king, David was a king. So after that, Solomon became a king, and David wants to build a temple of God, temple for the Lord. But God will tell that you shedded the blood, but your son Solomon will build the temple of God. So how Solomon built the temple of God, we also should be like Jesus is our forerunner, and he shedded the blood. He is no more in the flesh today. So we are representing the Jesus in flesh. We are the body of Christ. And how Solomon built the temple for the Lord, we also should build the church, New Covenant Church. Here the temple of since we are the temple of God in New Testament, we should win the souls, and we should build the church, New Covenant Church in today's world. And second thing is that next thing is many Christians don't understand why Jesus came to this world. So Solomon was a great example for that. Many people will think Jesus, like how other people, other Gentiles, they are worshipping the idols to bless them, and they will also think that we are worshipping Jesus so that we will be getting blessed in every physical things. That they don't understand what is the purpose of Jesus came to this world. So Solomon was an example that he had everything in this world. He had everything in this world. He lived such a luxurious life in this world, but he lacked one thing. So Jesus came to give life to this world. Jesus said, I came to give life and abundantly. Amen. So even though Solomon had everything in this world, one thing he lacked, that Jesus came here to give that only. So life in the new covenant means reconciliation to God. So in the old covenant, they don't have that. So in the new covenant, when Jesus came and he gave himself in the cross, when he shed his blood, so when we cleansed by his blood, we are reconciled to God. So we have connection to God, and we can speak to God in spirit. So that we should understand from Solomon's life. That's also. Praise God. Hallelujah. Anybody else? परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे सोलोमन के लाइफ से एक बात सीखने मिला कि सोलोमन के अंदर बहुत मतलब लशफुल डिजायर उसके अंदर था। ऐसा लग रहा है कि वो स्टार्टिंग में तो अच्छा चल रहा था, जैसे हम लोग पढ़ा 3रे अध्याय से, लेकिन जब 11वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो बहुत सारे फॉरेन वुमेन वहाँ पे लिखा है
कि वो अलग-अलग जाति के स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया और उसने इतने सारे शादी की, इतने सारे बीवी रखे और फिर परमेश्वर ने उसको बोला भी था कि यू शैल नॉट एसोसिएट विद देम, नॉर शैल दे एसोसिएट विद यू। लेकिन वहाँ पे इतना प्रभाव उसका उन लोग पे उस पे आ गया कि उसने उस सोलोमन का पूरा हृदय चेंज कर दिया। मतलब सोलोमन का परमेश्वर ही चेंज हो गया और सोलोमन का पूरा लाइफ वहाँ से पूरा बिगड़ गया और फिर वो आखिर में दूसरे देवताओं को पूजने लगा। तो ऐसे बहुत सारे उसने पाप किए जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो दाऊद ने पहले उसको कमांडमेंट दिया था। तो ऐसा मुझे लगता है कि सोलोमन के लाइफ में डिसिप्लिन जो बोल सकते हैं और जैसे अभी हमको पवित्र आत्मा मिला है तो हम अपने शरीर को मतलब जैसे पौलुस बोलता है हम काट के भूखे रख सकते हैं, वैसा नहीं उसके अंदर लाइफ में था। तो इस वजह से शायद उसने अपने आप को इनकार नहीं कर पाया, वो क्रूस उठाने जैसा उसका लाइफ नहीं था पहले। तो आज हमारे पास मौका है तो हम वैसा जी सकते हैं और जो डिसीजन उसको देना लेना चाहिए था वो नहीं लिया। तो सबसे बड़ा जैसे उसने परमेश्वर ने बोला है यहाँ पे कि उसका मतलब हृदय चेंज हो गया और उसको बोला भी था तो भी उसने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत डेंजरस है, मतलब एक डिसीजन उसका पूरा लाइफ खराब हो गया। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कभी भी कोई भी शादी अगर हम करेंगे तो जो मसीह में है वो हमारी पार्टनर होगी, तो मसीह में सही में होने चाहिए नया जन्म और वो सही होगा, एक मन होगा। तो यही मुझे सीखने मिला। धन्यवाद। आमीन। और एक 1% और कोई भी शेयर करना है तो 2 मिनट के लिए। परमेश्वर हो, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सारे वचन के लिए। जो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, ये पहला राजा 3 अध्याय का 9 पद से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि तू अपने दास को परखने का हृदय दे। सुलेमान ने जब अपना ये प्रार्थना किया था तो जैसे कि सुलेमान ने अपना राज्य काल विश्वास में और प्रभु के लिए प्रेम में आरंभ किया। पद 3 में जैसे लिखा है, तो उसने बुद्धि व परखने वाले हृदय के लिए प्रार्थना की। पद 5 से 9 में जो लिखा है, तो उसके बाद उसकी विनती से प्रसन्न हुआ। पद 10 में तो और उसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो पद 11 से 14 में लिखा है, तो उसके बाद फिर भी परमेश्वर द्वारा दिया गया बुद्धि का वरदान यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि सुलेमान सदा ईश्वरीयता में बना रहेगा। इसका ने जोर देकर कहा, यदि तू मेरे मार्गों में चलेगा तो दीर्घायु पाएगा। वो लंबी उम्र जो है परमेश्वर देगा यदि परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार चलता है। तो पद 14 में जैसे कि लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। तो उसके बाद के जीवन में सुलेमान की अविश्वास योग्यता उसके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण रूप से सिद्ध होने में बाधक बन गई। तो जैसे कि 11 का 1 से 8 तक जैसे कि बताता है, तो उसको जो है वो विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए जो है सो बाधा बन रहा था। तो जैसे कि 11 का 1 से लिखा गया है में, राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और जो अमोन, सिडोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा था। इस प्रकार से जो था, तो फिर भी वो बेविचार में पड़ गया। तो इसी वजह से जो था स्थिर नहीं रह पाया था। तो वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। तो इस वजह से जो था सुलेमान जो था, जो परमेश्वर को प्रसन्न किया था शुरुआत में,
इसे देखते हैं कि वो विश्वास में निरंतर स्थिर न रह पाया, वो जो बेविचार की वजह से। तो उसी तरह से हम लोग भी जो है हर इस चीज से बचे रहना भाइयों को बहुत जरूरी है। तो शैतान किसी वक्त भी हम लोग के ऊपर जैसे काम कर सकता है, उससे हम लोग को पवित्र आत्मा से भरते हुए इस चीज को हम लोग घृणा करते हुए इस चीज से हम लोग जो है अपने आप को बचाना जरूरी है। आमीन। तो Hallelujah. Anybody else? Brother, I want to share. Yeah, please. What I learned from Solomon's life is there is very thin line between what we need and what we want. And the devil is so deceitful that he deceives us in making that need to a want, and then we drift away from God. But praise God that we had our forerunner Jesus Christ, who has given us the Holy Spirit. By his filling, we can still be attached to God, and that need, the basic need, can be only be there in our life, and we cling on to God and his kingdom and his will. Yes. Yes, brothers and sisters, brothers, सोलोमन्स लाइफ से हम लोग बहुत ही सीख मिलते हैं कि हमारे जैसे ब्रदर ने कहा, हमारे तो जरूरत है तो और हम हमारी मांगे भी है। कभी कभी हमारे मांगे इतना बड़ा होता है, नीड्स वांट्स आर सो मच दैट वी रन आफ्टर दीज वांट्स एंड अल्टीमेटली वी लूज गॉड। एंड कभी हम शैतान के कब्जे में आ जाते हैं, हम कभी नरक में भी जा सकते हैं। इसलिए हमको सावधान रहने, पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमेशा हमको सावधानी देते हैं, चेतावनी देते रहते हैं। ही वांट्स अस, लॉर्ड नाउ दिस इज नॉट इनफ फॉर यू, या अभी दो टाइम, इधर टाइम पास मत करो, इसके पीछे मत जाओ, डोंट रन आफ्टर दिस, डोंट रन आफ्टर दैट, रन अप, सीक आफ्टर गॉड। हम कभी सुनते नहीं, अपना मनमानी से चलते रहते हैं, एंड देन वी हैड सफरिंग ओवर आवर लाइफ। तो जैसे सोलोमन का भी झेलना पड़ा, बहुत ही तकलीफ उनका अंत का जीवन में झेलना पड़ा। तो हम प्रभु उससे सीख मिले, एंड वी कैन प्रे टू गॉड। कल सुबह मॉर्निंग 10:30 को मीटिंग है। ब्रदर दिस फ्रॉम Chennai will be speaking. What's his name? Prakasham. Prakasham will be speaking. He is the elder at Chennai Church. वो हमसे बातें करेंगे. So we'll have the translation also. So God bless, and we can pray for the meeting that the anointing of the Holy Spirit will be upon him. And let us ask the blessing of the Lord today. Father, we pray, bless each of the brothers, Lord. Help us to be men on fire, Lord, and be men, Lord, and take a stand for you and live for you, Lord, in this short life which you've given us. Help us not to resist. Help us to resist all the attractions of this world. Sab sansaric lalsaएं हम we can resist, Lord, so to glorify your precious name, Father. यीशु के मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।